سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج جوزہ سٹار جیمنی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مئی سے لے کے 21 جون تک ہوگی، ان لوگوں کا سٹار جو ہے وہ جیمنی ہوگا، برج جوزہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں۔ تو اس بار میں سب سے پہلے بتاؤں گا جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بالکل بھی نئے کاروبار کی طرف نہ جائیں۔ اگر تو آپ کاروبار شروع کرتے ہیں پہلے ہفتے کے شروع میں، پہلی ڈیٹوں کے اندر، تو پھر بہتر رہے گا، برا نہیں ہوگا، اچھا بھی نہیں ہوگا، مگر سٹارٹنگ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پہلا ہفتہ نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ بالکل بھی کاروبار کی طرف نہ جائیے گا، ورنہ آپ کے نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سرکاری نوکری والوں کے، تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑی سی پریشانی لے کر آئے گا، مگر اوورآل بہتر رہے گا۔ پریشانی ضرور آئے گی، مگر وہ پریشانی کیسے میرا رب کاٹ دے گا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی کہ اس کو ہم بہتری کی طرف لے کر ہی جا سکتے ہیں۔ جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نوکری کے اندر اس مہینے کافی بہتری ملے گی۔ بونس وغیرہ وہ تو ملتے ہی ہیں ان دنوں کے اندر، مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو نوکری کے اندر ترقی ملنے کے چانسز ہیں، تعریف کے چانسز ہیں، نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بزنس مین ہیں، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ سینٹر کی چھٹیوں کے دن جو ہوں گے عید کے، ان دنوں میں کام بند ہوگا صرف ان لوگوں کا کہ جن کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے کام میں نہیں ہے، جیسے کریانے والے ہو گئے یا کچھ ایسے لوگ جن کی عید کے دنوں کے اندر بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں یا بزنس کھلا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ مہینہ سارا سیم ٹو سیم بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاروباری لحاظ عید کے بعد بھی آپ کا ڈاؤن نہیں ہوگا، بہتر ہی رہے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ، گلف کنٹریز والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، بہت برا نہیں۔ چانس کے اوپر آپ پیپر جمع کروا لیں تو آپ کا یہ چیز حل ہونے کے چانسز ہیں بھی اور نہیں بھی، تقریباً سمجھ لیں کہ 50% آپ کے چانسز ہیں۔ جو لوگ یورپ کنٹریز کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہتر نہیں ہے، آپ کو چاہیے اس مہینے اپنے پیپر نہ جمع کروائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے ساتھ اس معاملے کے اندر فراڈ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے، تو اس چیز سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بات کرتے ہیں جو لوگ یورپ کنٹریز کے اندر مقیم ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے اوورآل بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کاروباری لحاظ سے بھی اور گھریلو معاملات کے اندر بھی۔ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر یورپ کنٹریز اور دوسری یعنی پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں،
या अपनी किसी भी कंट्री से बाहर रहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के ऊपर जादू टूना बहुत ज़्यादा होता है। तो जो निशानियाँ बताई हैं उनके बारे में अपने आप के अंदर अपने घर वालों से पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना ओवरऑल आपके लिए बेहतर है। जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं उन लोगों के लिए ये महीना जो है थोड़ा सा परेशानी का सबब लेकर आएगा, मगर ये है कि वो थोड़ा सा होगा, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरे की तरफ, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक करने की तरफ ना दौड़िएगा। मेरे रब की तरफ से ये छोटे मोटे मामलात हैं, खुद ब खुद आएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा दौड़ेंगे इस तरफ तो उल्टा नुकसान उठाएंगे, ठीक है, यानी किसी चीज़ को सुलझाने के चक्कर में और बिगाड़ लेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिस्मानी बीमारियों की। तो जिस्मानी बीमारियों के अंदर आपके ऊपर दबाव, जहनी टेंशन के मामलात आपके ऊपर आ सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल जिस्मानी बीमारियों का कोई इतना ख़ास मसला इस बार आपके स्टार के अंदर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आपके ऊपर बेहतरी की तरफ ही है। अगर कोई छोटा मोटा मामला होगा तो बहुत हल्की सी मेडिसिन से भी इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आ जाएगा। यही सेम चीज़ आ जाती है जो मेरी बच्चियाँ बे औलाद हैं उनके लिए। अगर कोई बच्चे हैं उनको जिस्मानी मसला है, आगे आप समझदार हैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, कोई पोशीदा अमराज हैं तो उसके लिए दवाई लें, फौरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी और आपके ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि आपके स्टार के अंदर दवाई, मेडिसन, शिफा के मामला जो हैं उनको आपके स्टार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सेम टू सेम तालीमी मामलात के अंदर भी स्टार बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आपको मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके तालीमी मामला जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके भी बहुत अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। अब बात करते हैं शादियों के मामलात की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव मैरिज की। बराए मेहरबानी जो लोग फ्लर्ट करते हैं वो इस चीज़ से दूर रहें, फ्लर्ट का इससे कोई नहीं, सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ जो हकीकत में एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो आपके स्टार के अंदर इस बार बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। ये बता दूं पहले, छोटी सी मालूमात अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये मैं आपका स्टार बता रहा हूँ, सामने वाले का नहीं। मुझे काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिसके अंदर जी हमारा ये काम नहीं हुआ, बल्कि आपने ये बात बताई। तो अल्लाह के बंदे मैं आपका स्टार बता रहा हूँ। आप अपने सामने वाले को कहें आप अपने घर पे बात करो तो उसका अगर स्टार ही और है और उसके सारे मामलात ही हो रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपका बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। तो आप अगर अपने घर पर बात करेंगे तो आपका स्टार का ताल्लुक होगा, ठीक है जी। तो आप अपने घर पे बात करें, इंशाअल्लाह ताला आपके इस बार मामलात काफ़ी बेहतर है। अपने घर वालों से बात करें, कोशिश ये करें कि सेम अपना जो आपका दूसरा पार्टनर है उसका स्टार भी देख लें। अगर उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है तो फिर अगर दोनों मिलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए। अब बात करते हैं जो बच्चे बच्चियाँ अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना जो है थोड़ी सी परेशानियों का सबब बनेगा। रिश्ता होने के चांसेस तकरीबन समझ ले कि 30% के करीब करीब हैं, लड़कों के तो इससे भी कम है, 20% के करीब करीब हैं। तो इसलिए परेशान ना होइएगा, कुछ मामलात मेरे रब की तरफ से आते हैं और ख़ुद ब खुद कट जाते हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी है और मेरा रब ही इन चीज़ों के फ़ैसले करता है। तो उस रब पर यकीन रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। तो जितने भी होने के चांसेस हैं उसके अंदर ख़ानदान के अंदर, दोनों के बता रहा हूँ, लड़के और लड़की का, ख़ानदान के अंदर होने के चांस ज़्यादा हैं, ख़ानदान के बाहर होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर। जिन मेरे बच्चे बच्चियों की उम्रें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, 23-24 साल से ऊपर हो चुके हैं, रिश्ते हो ही नहीं रहे, तो अगर जो मैंने शुरू में निशानियाँ बताई हैं आपके अंदर वो नहीं है तो फिर आपके लिए महीना काफ़ी बेहतर है। आपके मामलात के अंदर रिश्ता होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं जी। तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स को मिलाकर जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई बनती है वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि रमज़ानुल बारिक का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर सदका जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हो सके तो सबसे बेहतर जो सदका है वो रंगीन कपड़ा अपने सर से वार कर दे दें, ना वारना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं। तो किसी गरीब को अगर आप एक सूट लेकर दे सकते हैं वो ले दें, नहीं तो कम से कम एक दुपट्टा ले दें, किसी बच्चे को एक जोड़ा ले दें, ये आपका सबसे बेहतरीन सदका होगा। जैसे जैसे वो पहनेगा
याद रखिएगा किसी ऐसे को दीजिएगा जो पहने। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, लोग कपड़े एक दुकान से लेते हैं और दूसरी दुकान पर बेच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचिएगा, किसी ऐसे को लेकर दीजिएगा जो पहने, क्योंकि आपको फ़ायदा तब ही होगा। और अगर हो सके तो कपड़ा जो है वो आप सिलाई करवा दें, ठीक है। तो बेहतरीन सदका जो है वो यही है। जैसे जैसे वो पहनेगा और जितना अरसा उसके पास रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता रहेगा। यानी ये सदका बहुत देर तक चलने वाला सदका है, जब तक वो कपड़ा इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। अगर आप ये नहीं दे सकते या आपकी गुंजाइश में इतना नहीं है और आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो आप गोश्त लें 5 टाक, और ये आप 3 हफ्ते करेंगे। हफ्ता बार बार बताता हूँ कि इस तरीके से होता है कि अगर आप कारोबार करते हैं, मर्द हैं, तो आपका हफ्ता आपके कारोबारी हिसाब से शुरू होगा। यानी आपकी अगर इतवार की छुट्टी है तो आपका सोमवार वाले दिन हफ्ता शुरू होगा। अगर आपकी जुम्मे की छुट्टी है तो फिर हफ्ते वाले दिन आपका हफ्ता शुरू होगा। तो 5 टाक गोश्त लें, अपने सर से 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमाएं, ठीक है। यानी सीधे कंधे से शुरू करना है, सर के पीछे से लाना है, उल्टे कंधे पे और सामने से लाकर फिर सीधे कंधे पर जब लाएंगे, गोल चक्कर करेंगे तो 1 बार पूरा होगा। तो इसी तरह पहले आपने 7 बार पहले सीधे कंधे से शुरू करके फिर वहीं से घुमाकर आपने उल्टे 7 चक्कर देने हैं। तो इस तरह आपने करके हर हफ्ते के पहले दिन आपने ये देना है। औरत ज़ात का हफ्ता जो है वो हफ्ते वाले दिन से शुरू होता है, अगर वो काम कोई जॉब नहीं करती तो, ठीक है। और अगर करती भी है तो फिर भी उसके लिए सबसे बेहतरीन सदक़े का दिन जो है वो 2 बनते हैं, मंगल और हफ्ता। मगर स्टार का कोई जो सदका है वो हफ्ते वाले दिन देना बेहतर होता है। अगर दिन निकल जाए तो औरत ज़ात मंगल को भी सदका दे सकती है। ये आपका हो गया सदका। अब बात करते हैं आपके पढ़ाई की। याद रखिए मैं हर स्टार के मुताबिक रोज़ाना की पढ़ाई भी देता हूँ। ये एक पिक्चर लगा रहा हूँ इस तरह की, ये थंबनेल है, ये रोज़ाना वीडियो अपलोड होती है, तो लाजमी देखा करें। इसमें रोज़ाना के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उसका रिज़ल्ट एक अलग होता है। बाकी आपको महीने के हिसाब से बताने लगा हूँ। आपने फजर की नमाज के बाद, ये आपने पूरा महीना करना है, फजर की नमाज के बाद सजदे में जाकर आपने 14 बार पढ़ना है या वहाबो, 14 बार या वहाबो। और हाथ आपके आसमान की तरफ होंगे जैसे दुआया अंदाज में होते हैं, और बिल्कुल उसी तरह अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार, 14 बार या वहाबो। और आप जब आपका ये मुकम्मल हो जाएगा तो आप सीधा उठेंगे इसी तरीके से कि आपके हाथ दुआ में सीधे उठें, और फिर आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, रिज़्क़ की, सेहत की, जो आपका दिल करे। इंशाल्लाह देखिएगा इसी महीने में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है जी। ये है मर्द ज़ात के लिए। औरत ज़ात जो है वो ये कर सकती है, मगर ये कारोबार और बाकी मामलात के लिए है, मगर वो कर सकती है, पर उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो ये 33 बार करे, यानी या वहाबो 33 बार पढ़े, ठीक है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा करम करेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।